आई हैव नेवर मेट अ गाय हु हैज ब्रोकन माय हार्ट। फाइनली किसी लड़की ने कहा कि मुझे अच्छे लड़के मिले हैं। मेरी तो बहुत होप्स आए। मैं तो डेफिनेशन थी गुड गर्ल की, जैसे गुजराती में बोलते सोती डाई छोकरी छे। लड़के जो है वो मेरे दोस्त बनते थे और मुझे बहन ही बना देते थे। मेरे खानदान में रेयरली किसी लड़की ने जॉब की। आई हैव टू रीच होम बाय 8 o'clock एनी हाउ। कर्फ्यू अभी भी है। अभी भी है। कहते हैं ना कि लड़की पे घर की इज्जत है और लड़के पे घर की प्रॉपर्टी है। लोग मेरे फैमिली को जज करते हैं फॉर गिविंग मी दिस काइंड ऑफ फ्रीडम, जबकि ऑल आई वांट टू डू इज टेल जोक्स। पहले ऐसा बोलते थे कि ऑनलाइन हिट आ रहा है यार, ब्लॉक हिम, बट इट इज नॉट ऑनलाइन एनी मोर। देयर वाज दिस गाय और टच करके गया और मैंने तो उसको मारा। First rebellion started with me making my Instagram profile public because उससे पहले I used to write as anonymous। कहते हैं लड़की हाथ से निकल जाएगी बर्बाद हो जाएगी, अब लड़की हाथ से निकले ही नहीं तो हाथ में ही रह जाएगी। RJ Princey Parekh on the Good Girls show with me today. Hi Princey. Hi Pari, How are you? I'm good. How are you? मैं बहुत बढ़िया हूँ यार. What's been your like go-to introduction on radio? Hello cutie, welcome back to my show। मैं हूँ प्रिंसी और मैं लौट चुकी हूँ आज की उल्टी पुल्टी खबरों के साथ। तो सुनते रहिए और जिंदगी से जस्ट प्यार किए जाओ बेबे। That used to be me on Radio was so much fun, yeah. So much fun. वहाँ वो लोग मुझे बोलते थे कि यार मैं 40 साल का आदमी हूँ लेकिन आप मुझे क्यूटू बोलते हो तो अच्छा लगता है। I know. On things you can only do on radio. Do on radio, yeah. Amazing. So this is the Good Girls show, जहाँ पर हम बात करते हैं about how girls, like बचपन से जैसे लड़कियों से कहा जाता है be a good girl. We have a segment which is called the Good Girls Report Card. Okay. पहला सेगमेंट है इस पे which is called I've been called. तो वो कौन से words हैं that people have used for you? I've been called loud, no. Bold, no. Sarcastic, yes. Talkative, no. Girl, yes. Dramatic, yes. Too dramatic. Sensitive, yes. Bossy, no. Too much, yes. Rebel, yes. Opinionated, yes. Brave, yes. Wow. So you like all the words that you have been called? No, I don't like the word too much. हाँ ना? ये क्या है too much? ये तो बहुत ही नॉर्मल है ना, जो मुझे लगता है कि नॉर्मल है, लोगों को टू मच लगता है। हाँ. फिर उनकी बातें मुझे नथिंग मच लगती है। हाँ, मेरा स्टैंडर्ड हाई है, तुम्हारा लो है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करूँ मैं फिर? Then I only vibe with people who are also considered too much. And for us, and then it's the normal. Correct. दूसरा सेक्शन इस पर है which is remarks. तो क्या remarks हुआ करते थे report card पर? That's the first part. A remark that used to be on your report card as a little girl. Oh. On my academic report card. Yes, on your school report card. It was a good girl. But can do better. The reason I wasn't being called loud and bold mostly is because मैं तो definition थी good girl की, मैं अभी भी हूँ काफी लोगों के लिए। I have grown up like यही सुनते हुए कि ये तो जैसे गुजराती में बोलते सोती डाई छोकरी छे, सबसे शांत लड़की है, इसको जहाँ बोलोगे बैठ जाएगी, जब बोलोगे चुप हो जाएगी, जो दोगे वो खा लेगी। I have been like the definition of good girl. तो इसलिए शायद मुझे कभी loud bold सुनने का मौका नहीं मिला। But you would have loved to be that, है ना? Yeah. I know. Yeah. So good girl can do better. ये remark हुआ करता था. Yes. But what is the remark you wanted? ऐसा कुछ था कि यार ये क्यों नहीं लिखा मेरे लिए? Something that would say this girl is unique or this girl has a lot of potential. ऐसा कभी कुछ बोला होता तो कितना अच्छा होता। हाँ. क्योंकि half of my school life I was trying to put myself like अलग से कि represent myself, my thoughts. I was fighting, struggling to do that because I was considered as a good girl. So I cannot have opinions that are controversial or opinions that are very strong. दो तरीका होता है, एक तो आपको जब कहा जाता है that this is not how you should be, तब आप रिबेल करते हो, एंड दूसरी चीज होती है जब आपको एक बॉक्स में पहले से ही डाल दिया जाता है कि ये तुम्हारा बॉक्स है, this is you, then your own idea of you becomes that. हमें कहा जाता था कि लिपस्टिक नहीं लगाती अच्छी लड़कियां,
अच्छी लड़कियां बाल नहीं खोल के बाहर जाती, जबकि मेरे अंदर इतना वो इनग्रेन हो गया कि मेकअप लगा के घूमने वाली लड़कियां जो होती है वो अच्छी लड़कियां नहीं होती। स्कूल में लिप ग्लॉस लगा के चली गई तो टीचर्स भी तो शेम करते थे ना हाँ कि कैसी लड़की है, हाँ पफ अरे करके आती है। पफ करके आती है, अगर स्कर्ट थोड़ा सा फोल्ड किया हुआ है तो ओ माय गॉड वो सबसे मतलब कैरेक्टरलेस लड़की है वो क्लास की। कितनी बुरी चीज है ये, और ये Yeah. कैसे नॉर्मलाइज हो गई। अब मानो मेरे को महान बना दिया, और मुझे बहुत गुस्सा आता था कि लड़के जो है वो मेरे दोस्त बनते थे और मुझे बहन ही बना देते थे कि मेरी कोई बहन नहीं है, आप बनोगी क्या। एंड दैट्स हाउ आई यूज्ड टू गेट टू टॉक टू बॉयज, बिकॉज अच्छा ठीक है तू मेरा भाई है, चलो बात करते हैं, नाउ लेट्स बी फ्रेंड्स। जैसे मैं कॉलेज में गई ना, तो जूनियर कॉलेज में जय हिंद में थी, तो वहाँ पे मेरे स्कूल का कोई भी नहीं था जो मुझे महान समझता था। तो फ्रेश स्टार्ट मैंने बोला अब तो मैं करूँगी बदमौसी। अब मैं बनाऊंगी एक नई इमेज। वहाँ मैंने स्टैंड अप स्टार्ट कर दिया, जहाँ मैं पोइट्री करती थी मैं पूरा स्टैंड अप कर दिया, मतलब कॉलेज में प्लेज में वो सारे रोल्स किए जहाँ मुझे लगता था कि स्कूल में तो लोग बिलीव ही नहीं कर रहे कि मैं ये कर रही हूँ। जितना मैं उस गुड गर्ल इमेज से प्यार करती थी और अपने आप को प्राउड समझ, उतनी नफरत होने लग गई कि ये तो ट्रैप है, ये तो हमें गुलाम बनाया जा रहा है, ऐसे में आगे कभी बढ़ ही नहीं पाऊंगी। ये तो स्कूल की बात हो गई वेयर यू नो यू वर एक्सपेक्टेड टू बी अ गुड गर्ल, लेकिन घर पे कैसा था? मेरे खानदान में रेयरली किसी लड़की ने जॉब की है। वी वर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड स्टे होम, इफ़ यू वांट टू वर्क फ्रॉम होम, जैसे कुछ ट्यूशन क्लासेस ले लिए या वैसा सब। ऐसा नहीं था, मतलब वो वही बोलते थे पैसे कमाने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास इनफ पैसे हैं, तो वो वही कहते थे। तो और क्योंकि मेरी वो नर्चरिंग रही है गुड गर्ल की, तो दे नेवर एक्सपेक्टेड मी टू गो अगेंस्ट देम। पर जब मैं जाने लग गई, हर चीज़ को क्वेश्चन करने लग गई, व्हेन आई स्टार्टेड फाइटिंग फॉर माई सेल्फ, देन आई स्टार्टेड बिकमिंग द वर्स्ट गर्ल, लाइक शी इज़ अ न्यूसेंस, वैसा टाइप का, कि ये कितना हमें मतलब पागल कर रही है, इतना क्वेश्चन कर रही है। तो ये होता था। कर्फ्यू अभी भी है। अभी भी है? हाँ, मतलब आई हैव टू, एवरीबडी हु नोज मी नो दैट आई हैव टू रीच होम बाय 8 o'clock एनी हाउ। What are you saying? Yes. In Mumbai? In Mumbai. And I understand, I get my father's point also कि दुनिया सेफ नहीं है, लेकिन काफ़ी हद तक उनका ये पर्सपेक्टिव भी आता है कि लोग क्या कहेंगे कि लड़की अगर रात को लेट आती है तो वो कैसी लड़की है। तो मुझे वो बहुत, मतलब पहले आई वॉज अंडरस्टैंडिंग माई फादर्स पॉइंट ऑफ व्यू, सेफ्टी की वजह से आ जाऊंगी, बट जब मुझे ये पता चला ना कि डीप डाउन वो फियर नहीं है दुनिया को, क्योंकि मुंबई बहुत सेफ सिटी है। Of course, it's the safest city for Yeah. girls, यार। और मैं देखती हूँ लोग 10-10 बजे लेडीज कंपार्टमेंट फुल होता है। आई लव मुंबई, आई लव लेडीज कंपार्टमेंट बाय द वे। I know your reels, I've seen them. Yeah. तो वो फुल होता है, दीज आर फियरलेस लेडीज ऑफ मुंबई। एंड देन आई गॉट टू नो समाज का डर है। मेरे पापा को दुनिया से डर नहीं है कि मेरा कुछ गलत हो जाएगा। इट्स द पीपल हु थिंक, जो बिल्डिंग के नीचे बैठते हैं, सोसाइटी में बैठते हैं ना, कि ये इतने बजे आई है, देखो ऐसी लड़की होती है क्या जो 9 बजे घर आए। तो मेरे पापा ने ऐसा बोला 8 बजे घर आ जाओ, ताकि हमारी भी, हम वो उसमें ना आए कंट्रोवर्सी में। कैसे करते हो फिर प्रिंसी? Like 8 o'clock is, see 8 o'clock तो life starts in Mumbai. I'm not even kidding, and I'm not Yes. saying this in terms of कि just like you know just partying or hanging Yeah. out. In terms of work also, Work यार। also. Shoots होते हैं, late night shoots होते हैं, and you are now in this profession where I know that your work is going to extend beyond just making reels, right? Awards होते हैं where you go and you have to you know pick your award. Yeah. आप वहाँ पर नहीं कह सकते हो कि Go मुझे for open mics. go for open mics. आप वहाँ नहीं कह सकते हो कि मुझे 8 बजे तक घर पहुँचना है. How are you balancing this? How are you managing this? So what I do is, it's quite funny. A lot of people say कि you go on trips, okay, work trips, जो outside India भी होती है, but you complain about not getting outside your house after 8. So because I follow the promise of being at home by 8, I get the privilege of going, of attending the awards, और कभी कभी कहीं कुछ किसी और सिटी में 1-2 दिन के लिए जाना हो गया, तो मैं ऐसे ट्रेड कर रही हूँ कि देखो मैं महीने में 25 days टाइम पे आई हूँ, नाउ आई जस्ट नीड 2 days वेयर आई हैव टू गो टू अनदर सिटी। तो वो है कि इसको करने के लिए ये बैलेंस करना पड़ता है। इट्स लाइक अ म्यूचुअल अग्रीमेंट बिटवीन मी एंड माई फैमिली। You have siblings?
यस। या कौन है, भाई बहन? भाई है, बड़ा भाई है। बड़ा भाई है, ओके। ये सारे रूल्स उसके लिए एप्लीकेबल है? हाँ, उनके लिए भी है, लेकिन उतना हार्डकोर नहीं। जैसे मेरे पर तो घर की इज्जत है यार, वो थोड़ी घर की इज्जत है। वो होता है ना, कहते हैं ना कि लड़की पे घर की इज्जत है और लड़के पे घर की प्रॉपर्टी है। तो मेरे हाथ में तो इज्जत है घर की, मैं कैसे लेट आ सकती हूँ? वो थोड़ा बहुत लेट आए तो चलेगा, बट ऐसा भी है कि नाउ आई अंडरस्टैंड माई फैमिली ऑल्सो, कि एक तो मुझे कहा जाता है, मतलब मेरी फैमिली को कहा जाता है कि ये लोग कितनी फ्रीडम दे रहे अपनी बेटी को। तो मैं भी समझ सकती हूँ कि उन पे क्या गुजरती होगी रोज रोज। दे मस्ट बी फाइटिंग दीज काइंड ऑफ स्टूपिड रिलेटिव्स हु से स्टूपिड स्टफ। सो आई रिस्पेक्ट देम कि वो जितना कुछ कर रहे हैं ना मेरे लिए, इट इज ऑलरेडी इनफ। सो आई ऑल्सो हैव कम टू टर्म्स विद इट कि Of course. I understand you and you also understand me. I have a long way to go abhi. But who is the most, like, slightly more supportive? You've mentioned कि how पापा को हमेशा ये डर रहता है कि सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, but what role does your mom have to play in this? My mummy supports me the most. ऐसा कह सकते हैं कि बहुत पर्सनली ले लेती है वो मेरी, कोई मुझे कुछ बोलता है तो, फिर चाहे वो पापा भी हो। तो पापा भी अगर मुझे कुछ बोल देता है ना गलत सा, जो मम्मी फाइट्स फॉर मी, इवन बिहाइंड माई बैक शी फाइट्स विद सो मैनी पीपल। हाँ, हालांकि उनको भी काफ़ी डर सताता है, वो शादी वादी समाज वमाज का, बट आई थिंक शी इज़ वेरी ब्रेव इनफ टू होल्ड हर स्टैंड। वो कहती है कि तू जा, मैं कर लूँगी, घर का जो भी काम है मैं कर लूँगी, संभाल लूँगी, जो भी है, यू गो, यू जस्ट गो, you work and come back home on time. That's Only it. moms. Yeah. Only moms. And मुझे तो ऐसा लगता है कि यार, like, पहले उन्होंने खुद के लिए लड़ाई की होगी, राइट? पूरा उनका गर्लहुड खुद के लिए लड़ाई करने में गया होगा। फिर when she has a daughter, अब वो उनकी बेटी के लिए भी लड़ाई कर रही है। So like उनकी पूरी लाइफ एक लड़ाई रही है। Have you seen your mother struggle with few things, anything? मेरी मम्मी ना बहुत शौकीन थी, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि काफ़ी सबसे फ़नी औरत मैं अगर किसी को जानती हूँ, मेरी मम्मी है। उनके साथ आप 10 मिनट बात करोगे ना, आप हंसे बिना रह ही नहीं पाओगे। शी इज़ सो फनी एंड आई विश वो जो उनके शौक है वो आगे कर पाती। कितना कुछ उनमें टैलेंट है। शी कैन डू एनीथिंग, शी कैन स्टार्ट हर ओन बिजनेस राइट नाउ। शी हैज़, मतलब मैं अभी भी उनको फैशन का पूछती हूँ कि ये ड्रेस इसके साथ पहनूँ, इस ईयरिंग के साथ क्या करूँ। शी नोज, शी इज़ अ वेरी गुड डिज़ाइनर ऑल्सो। उनको ज्वेलरी का इतना शौक है, वो बना के देती, देखो मेरे को ऐसा बना के दो। वो लोग दंग रह जाते कि हम पिंटरेस्ट से कॉपी कर रहे हैं, आप बना के दे रहे हो। शी कुड हैव डन सो मच, पर शायद उनको वो नहीं मिला जो मुझे मिला है। अगर वो उनको मिल जाता तो वो कहाँ की कहाँ पहुँच जाती। बट आई थिंक दैट इज़ वाई शी इज़ ऑल्सो सीइंग हर सेल्फ इन मी एंड पुशिंग मी हार्डर इनफ कि तुम आगे बढ़ो। एक कोर मेमोरी क्या है विथ योर मदर? मम्मी के साथ फेवरेट मेमोरी क्या है? एनीथिंग दैट शी सेड जो अभी तक याद है एंड ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरे साथ रहेगा? अभी जस्ट 2 महीने पहले तो कुछ रिश्तेदार आए थे, उन्होंने कहा था कि अभी तो ये जो आपकी लड़की है, वो लोग है ना रिश्तेदार तारीफ के अंदर बुराई, मतलब वो ताने डाल के उसे रैप करके देते हैं। तो वो बोलते हैं कि अभी तो आपकी लड़की इतनी आउट ऑफ रीच हो गई है, एकदम ही वो हो गई है बड़ी इंसान, कि अब तो इसकी शादी होना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा बोल देते हैं वो लोग। और मम्मी तो बहुत टेंशन में आ जाती। मम्मी को और कोई चीज़ नहीं सताती मेरी शादी के अलावा। तो मम्मी दुखी हो गई, फिर मम्मी एकदम रोने लग जाती कभी कभी रात को, वरना मम्मी कभी नहीं रोती। मम्मी जब रोती है तो इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर मी, बिकॉज माई मॉम इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वुमन आई नो। तो जब वो रोती है ना तो फिर दर्द होता है, मुझे रोना आ जाता है। मम्मी ने मुझे कहा कि देख, पूरी दुनिया तेरे खिलाफ है, अभी तू भी आगे बढ़, क्योंकि तूने इस दुनिया को ठुकराया है ना, ये समाज जो तेरे खिलाफ है, तूने उसको ठुकराया है ना, तो तू अभी रुकना मत, तू पीछे मत जाना। जिसके लिए ठुकराया ना, जिस काम के लिए, वो काम अपना बेस्ट कर और बहुत आगे जा, क्योंकि अब तो ठुकरा दिया है। तो फिर यहाँ पे भी अच्छा नहीं करोगे, वहाँ पे भी अच्छा नहीं करोगे, तो क्या फ़ायदा? नाउ यू गो फ्लाई एज हाई एज यू कैन, because you've paid a huge cost. You've said no to a whole sort of group of people. What is the most stupidest thing your relatives have said?
to your parents? कुछ ऐसा कुछ याद है? मुझ तक लाते ही नहीं है, वो लोग अपने में ही कर देते हैं। बट ये सबसे ज्यादा कि वही कि लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा और वो सब। ये तो बहुत फनी है यार। ये तो बहुत फनी, मुझे समझ नहीं आता कि like it's so strange that they think कि if a girl has a voice then लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये क्या है? ये तो है। वही है ना कि मतलब पूरा लाइफ कितना कुछ लड़के के ऊपर ही रिवॉल्व करता है। मैंने यही आई हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू दिस कि बॉडी वेट कम करो वरना कोई लड़का भाव भी नहीं पूछेगा, कि थोड़ा सा पढ़ लो, मतलब आजकल के लड़कों को अनपढ़ लड़कियां नहीं पसंद है तो पढ़ो। तो अभी पढ़ा भी लड़कियों को इसीलिए रहे हैं ताकि उसका जो बायोडेटा है उसमें दिखे कि भाई हाँ एटलीस्ट ग्रेजुएट तो है। वरना अच्छे घर के लोग, अच्छे घर के लड़के, अच्छे घर के, एक तो मैं ओके आई एम सो फ्यूरियस अबाउट दिस अच्छे घर के लड़के। अच्छा घर क्या है? मेरे मम्मी पापा मुझे कहते हैं कि इतने अच्छे घर के लड़के आ रहे हैं, तू ना बोल रही हो उनको, पता है ये कितनी बड़ी इंसल्ट है। एक तो मेरी लाइफ का सवाल है और आपके लिए अच्छे घर की डेफिनेशन क्या है कि वो अमीर है। उसके बाद क्या? मैंने बोला कि आप वो बोल रहे हैं कि वो 200 करोड़ की पार्टी है, 300 करोड़ की पार्टी है, हाँ नथिंग मच, वो 200 करोड़ की पार्टी है। मैंने बोला कि हाउ डू यू डिफाइन अच्छा घर? कि अच्छा घर मतलब 50 करोड़ 100 करोड़ की पार्टी है, लड़की खुश रहेगी। मेरी कजिन्स जो हैं अभी तो पता नहीं उल्टा सा फेमिनिज्म का ट्रेट हो गया है कि पहले हम इतने सालों से औरतें लड़ी कि हमें काम करने को मिले, हमें इंडिपेंडेंट होने को मिले। नाउ माई कजिन्स यंगर वंस दे आर सेइंग कि मुझे बस कोई अमीर घर का लड़का मिल जाए, करोड़पति जनरेशनल वेल्थ वाला लड़का मिल जाए, मेरी लाइफ तो सॉर्ट है। अरे दीदी नहीं, यही तो स्कैम है। मांगना तो पड़ेगा ही ना फिर भी पैसा। तो फिर आप किस फ्रीडम की बात करिए, किस आज़ादी की बात करिए कि बस लाइफ सॉर्ट है? यू विल स्टिल हैव टू आस्क। आई डोंट लाइक द फैक्ट दैट आई हैव टू डू दिस। Of course, and now you are making your own money. Yeah. You're probably earning more than anybody doing a regular job is. Like, Princey, I mean, do your parents realize that? क्या उन्हें इस बात का एहसास है कि हमारी बेटी कमा रही है और अच्छा खासा कमा रही है? हाँ हाँ उनको पता है, एंड एज अ गुजराती उनको पता है। Of course. तो उसका तो मतलब वो बहुत ही अच्छा वैलिडेशन है उनके लिए कि दुनिया में बहुत मुश्किल है पैसा कमाना, तो अगर तुम्हें कोई 10 रुपए भी दे रहा है तो तुमने कुछ किया होगा। मुफ्त में तो कोई नहीं बांट रहा है। बट इसके बाद भी देर लाइक कि एक अच्छा घर का लड़का दैट मेक्स यू स्टिल डिफिकल्ट टू बी मैरिड, क्योंकि फिर वो लड़का भी वो मैच करना चाहिए ना, पर्सनालिटी, ओपिनियंस, इनकम। क्योंकि लड़कों को कैसे चलेगा कि लड़की उससे ज्यादा कमाती है? आय हाय। फिर चाहे वो अच्छे घर का लड़का हो। एंड माय मॉम कीप्स ब्लेमिंग माय पापा कि आप काश और लोगों को भी जानते होते। तो अभी तो ऐसा हो गया है ना कि हमारी शादी पापा की नेटवर्किंग पे डिपेंड हो जाती है कि पापा कितनों को जानते हैं और मम्मी कितनों को जानते हैं। पापा जिनको जानते हैं उनको मेरा काम पसंद नहीं है, तो फिर तो कैसे होगा? काम पसंद नहीं है, as in what opinion do they have of your work? मुझे ये भी जानना है। I can't say on camera. They are very bad words that they speak. Very bad words. रात को नींद नहीं आएगी आपको वैसे शब्द। हालांकि कुछ जो कॉमेडियंस है उनको तो पहले से बोला जाता था और now they make fun of it. But you know what kind of words they say. ऐसे में अगर थोड़ा उसको डाइल्यूट कर दूँ तो वो कहते हैं कि स्टेज पे कोई हो और लोग उन्हें देखे और ताली बजाए तो वो लड़की कौन है? बार डांसर। तो ये तो फिर भी नॉर्मल मैं वर्ड्स में आपको बोल रही हूँ। और उनके हिसाब से यही है कि तुम अगर स्टेज पे जाके लोगों को हंसा रही हो, तुम्हें कॉमेडियन बनना है और लोग ताली बजा रहे हैं, तो तुम्हें लोग बुरी नज़र से देख रहे हैं और तुमसे वो कुछ और देख रहे हैं तुम में, इसीलिए वो एंजॉय कर रहे हैं। ना कि तुम्हारे कुछ ओपिनियंस है, जोक्स है जो तुमने लिखे हैं, राइटिंग्स है, कुछ नहीं। यू आर अ बैड आंसर, ओके। दैट इज हाउ दे थिंक। तो कितनी अजीब चीज़ें, और वैसे हमें बता दिया जाता है कि तुम कितना गलत काम कर रहे हो, जबकि ऑल आई वांट टू डू इज टेल जोक्स, ऑल आई वांट टू डू इज परफॉर्म माय सेट, एंड दैट इज बेसिक। तभी मुझे लगा कि एक बहुत, या तो मैं ये कर पाऊंगी या फिर मैं इनकी अच्छी बच्ची बन पाऊंगी। But Princey, मुझे बताओ that you are now out, like you have a following of more than 1 million, okay, on Instagram, and you are out there, you're making videos every day.
कहीं ना कहीं do you like censor yourself in terms of Yeah. what you are saying, in terms of what you are wearing, how you are looking? कहीं ना कहीं internally वो back of the mind चलता है अभी भी? Yes, Hmm? I do censor. Some of the lines that I want to say, I dilute them. Because again, it's not about I want to be all what I want to be, and I want to say all what I can say. But हम एक ऐसे सोशियो पॉलिटिकल वातावरण में रह रहे हैं कि अच्छा ही है कि तुम सेंसर कर रहे हो अपने आप को, क्योंकि अगर लंबा टिकना है तुम्हें, तो एक बहुत ही अच्छा नाजुक तरीका निकालना होगा जो बात आपको बोलनी है वो बोलने का, वरना घर टूट जाएगा तुम्हारा, तुम्हारे मम्मी पापा खतरे में आ जाएंगे। पहले ऐसा बोलते थे कि ऑनलाइन हेट आ रहा है यार, कंप्लीट मतलब डोंट केयर अबाउट इट, ब्लॉक हिम, ब्लॉक दिस गाय, डिलीट दिस कमेंट। बट इट इज़ नॉट ऑनलाइन एनी मोर। कि वो जब कहते हैं ना कि तेरे घर पे आगे तुझे मारूंगा, तो वो हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है that there's a lot of hate for I think everybody now, लेकिन especially for girls, for women, जो hate है वो बहुत physical है, वो बहुत sexual है वो hate. Yes. As a girl on the internet, मुझे बताओ कि online safety on the internet, ये कितना important है, and how would you want it to be? As a girl on the internet, we want that to be a safe space for us. Yes. Right? How can that happen? I don't think there is any app or any technological changes that can make a difference. It's the attitude of people. जैसे कुछ लड़कियां जो है क्रिएटर्स, वो क्या मस्त चीज़ कर रही है, वो उनको हेट कमेंट आता है तो वो उसका यूज़र नेम डाल देती है कि ये यूज़र नेम के आदमी ने ये लिखा है। तो तुम सोचोगे और वो स्टोरी देख के और 10 लोग भी सोचेंगे कि मैंने अगर इसको कुछ गलत लिख दिया तो ये मेरा भी डाल देगी। कॉल आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? यस, वी शुड कॉल आउट, वी शुडंट बी। यहाँ पे भी वो गुड गर्ल कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि बेचारा अगर मैं इसका डाल दूंगी ये तो नादान है, मूर्ख है। पर नहीं, वो नहीं है मूर्ख। हमने देखा है 14 साल के बच्चे भी क्या करते हैं और 17 साल के बच्चे भी क्या करते हैं। मतलब जब तक तुम डर को हराओगे नहीं डर से, तब तक वो आप ही डरते रहोगे। यू हैव टू ट्रीट देम हाउ दे ट्रीट यू। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और ऐसी चीज है कि लड़कियां कुछ ना करें, जैसे मेरे पिकअप लाइंस हार्मलेस, क्योंकि आई ट्राई माई बेस्ट टू लाइक सेंसर माई सेल्फ। बट ऐसा है कि लड़कियां अपना ओपिनियन भी रखे ना। चलो लड़की कुछ बोल नहीं रही, वो फैशन क्रिएटर है, उसके कपड़े की चॉइस से भी लोग ऑफेंड हो जाते हैं और उसको हेट करते हैं। और ये बहुत ही नॉर्मल हो गया है। लड़की अपने लिए स्टैंड ले तो भी लोग हेट करते हैं। डिड यू सी द रीसेंट वीडियो जो एक बहुत ज्यादा अभी वायरल हुआ? देयर इज अ क्रिएटर, वो अपनी बिल्डिंग के स्टेयरकेस में एक वीडियो बना रही थी। हाँ। और कोई तो रैंडम आदमी he walked up the stairs and he tried to touch her. I was shocked. I was like कि किसी को भी कैसे लग सकता है कि ये नॉर्मल है? गट्स कैसे है? How can you think it is okay? I will touch and I will get away with it. वो ऐसे टच करके जा रहा था सिर्फ, and उसने फिर जो मारा है ना मजा आ गया यार। मतलब it was amazing. Yeah. And when I first saw the video, I thought that this is so brave of her to do that यार, because ऐसे moments पे ना पहले तो आपका for few seconds आप instantly react नहीं कर पाते हो, right? I have तो never been able to react instantly. मुझे घर जाकर realize होता है कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ है यार, ये क्यों नहीं किया मैंने, ये कर देना चाहिए था ना। उस moment पर to have that spontaneity where she has slapped him, not many girls are able to do that. Because हम तो फ्रीज हो जाते हैं हम। बट मैंने किया अभी, मुझे इतना अच्छा लगा। लास्ट मंथ देयर वाज दिस गाय हु वाज कुछ तो बोल के गया बुरा सा और टच करके गया, और मैंने तो उसको मारा, मजा आ गया। मेरे हाथ में बैग थी, मतलब हाथ से नहीं मारा, बैग उछाल के मारा उसको, और फिर लोग देखने लगा और मैंने गाली दी। मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम गाली दी, और वो भी ऐसे पब्लिकली, और लोग देखने लग गए और लोग इकट्ठा होने लगे और लड़का भाग गया। मेरी फटी पड़ी है बट मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। इसको लगना चाहिए कि मैंने नोटिस किया, बस। एब्सोल्युटली। पर ये हमेशा हैव यू बीन एबल टू डू दिस? नो, इट्स वेरी टफ। इट इज टफ। मैं लोकल ट्रेन में थी और हम कॉलेज जा रहे थे, और तभी लेडीज़ कंपार्टमेंट, मतलब क्योंकि हम घाई में थे तो जेंट्स कंपार्टमेंट में चढ़ गए थे, एंड समबडी टच्ड ओवर देयर, डाउन देयर, एंड आई न्यू दैट गाय हु टच्ड, क्योंकि उसका हाथ दिख रहा है।
वो आदमी मुझे देख रहा है आंखों में आंखें डाल के, मैं उसको देख रही हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ. इट इज़ जैम पैक्ड द होल कंपार्टमेंट, क्योंकि मुझे एक स्टेशन के बाद उतरना ही था. तो मैं अंदर भी नहीं गई सीट वीट लेने, मैं वहीं खड़ी थी. और वो आदमी मुझे, उसकी औकात कि वो मुझे देख रहा है मेरी आंखों में विदाउट एनी गिल्ट, एंड ही इज़ डूइंग इट, and I cannot do anything. And the moment the train stopped, first thing I wanted to do was find him and do something, just find him. पर वो मुझे मिला ही नहीं, और वो मेरा पूरा दिन, पूरा हफ्ता ख़राब हो गया. और बहुत बुरा, इतना बुरा कि मतलब मुझे तो ऐसा है कि that has affected my relationship with normal guy friends also. Not just that one incident, but some of these. कि फिर मुझे लड़कों से ही डर लगने लग जाता है. एक फियर बैठ गया है. Thank you for sharing. What did you do after that immediately? I didn't do anything. Did you go back home? किसी के साथ शेयर कर पाई थी? नहीं. मैंने एक बार इस बारे में ऑनलाइन बोला था, और लोगों ने बोला कि जेंट्स कंपार्टमेंट में क्यों चढ़े फिर. What? तुम्हारे लिए अलग से बनाया है जहाँ हम नहीं जा सकते, तो तुम्हें जेंट्स में क्यों आना है, तुम अपने कंपार्टमेंट में जाओ. एंड देन वी नो दैट दीज पीपल आर नॉट बॉर्न ओवरनाइट, दीज पीपल ग्रो लाइक दिस आफ्टर हैविंग दीज काइंड ऑफ ओपिनियंस. वो पोटेंशियल असॉल्टर्स ही होते हैं जो ऐसी बातें सोचते हैं. Correct. Thank you for sharing that, Vincy, because it's sad, and for a fact I know that almost every girl has had to go through every girl this somehow. Yeah. But the fear, have you been able to get over that fear of just talking to boys, being around guys? पहले तो मेरा यही था कि पहले भाई बनो फिर मैं बात करूँ. ऐसे भी पहले लोगों ने तुम्हें बहन बना दिया already. They were like his sister. I don't know any other way of talking to boys without making them my brother. I don't know. That is such a very toxic trait. तो फिर अगर कोई लड़का बेचारा अप्रोच भी करता है तो मैं ऐसे 1 arm distance रखती हूँ उसके साथ कि हाँ okay, I know I'm feeling for you. I know I want to die to talk to you. I'm dying to talk to you. I have started getting attracted to you, but oh my god, I have started getting attracted to you. डर लगने लगता है. I should not be feeling this. भागो, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैंने सोचा था कि हर चीज़ उसी से लिंक हो जाती है फिर वो गुड गर्ल इमेज से. कि अगर मुझे आज़ादी मिल रही है काम करने की, इतनी बड़ी चीज़ मिल रही है मुझे, तो मैं और एक रूल ब्रेक नहीं करना चाहती. वो अभी तक वो डर नहीं गया. मुझे ऐसा लगता है कि वो होता है ना कि जब पहले टीनेज ईयर्स में किसी लड़के से बात करते हुए पकड़े गए तो तुम्हारी तो पहले ट्यूशन बंद हो जाएगी, स्कूल बंद हो जाएगी, स्लीवलेस पहनना बंद हो जाएगा, वन पीस पहनना बंद हो जाएगा. तुम ही हो जिसने कांड कर दिया है और तुम घर पे बंद रहोगे. तो उस चीज़ से मुझे बहुत डर लगता था. और फिर मुझे था कि अगर मुझे काम करना है ना पापा मम्मी की परमिशन से, तो मैं ये इस सब से दूर रहूँगी. चाहे फिर मुझे कितनी भी फीलिंग्स हो, मैं नहीं बात करूँगी किसी लड़के से. कभी कभी वही हो जाता था कि ऐसे टॉकिंग स्टेज पे आके सॉरी आई डोंट थिंक दिस कैन गो एनी फर्दर अहेड. No, but I hope you are able to cross that. Someday. Yeah, you will. I'm sure you will. We will end with a final segment. So this segment is called the firsts. ठीक है, तो इसमें कुछ questions हैं about the firsts in your life. Okay. First date. अरे यार छोड़ो यार. Have you been on a date, ये बताओ. Yes. कैसा था experience? अच्छा था. अच्छा था? मैं भाग गई. Really? तो क्या हुआ था कि एक लड़के ने मुझे बोला था कॉलेज में कि can I take you for coffee, and I was like कि now because I've decided to do everything that is rebellious in college, I will do. So I said yes to him. Okay, I'll go for coffee. And then I did not know that it's like he's romantically feeling for me और जो भी है. मुझे लगा कि तभी प्रॉम वॉम के लिए पूछना होगा तो वो पार्टनर ढूंढ रहा होगा, तो उसको मैं मिल गई तो कोई नहीं मिला होगा इसलिए वो मेरे पास आया. तो हम लोग गए और उसने रोज निकाला. ही वॉज काइंड ऑफ प्रपोजिंग मी, और फिर मैं डर गई, मैं भाग गई. Oh no! मैंने बोला
कि ओ शिट क्या करना होता है, आई डोंट नो, इट वाज बैड। Yeah. First crush. वो एक सीरियल आती थी महाराणा प्रताप। हाँ हाँ, उसमें जो महाराणा प्रताप का चाइल्ड रोल था वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उसकी जो आंखें हाँ, जो हाँ, ऐसे भूरी भूरी फैजल से। खान। फैजल, He was ये also a फैजल, he was a dancer. dancer, Yeah, no? yeah, yeah. Oh yes, he was very He's cute. very. You know, I it's made a fan page of Faisal on. really क्या कोर मेमोरी अनलॉक हुई है यार महाराणा प्रताप वाली। First poetry you went out public with. It was about molestation. I was very angry and I was shouting on the mic कि आंखों से बलात्कार करते हैं, वो था टाइटल उसका। और एकदम ही इट वाज रॉ, आई वाज एक्चुअली एंग्री एंड आई रोट दैट बिकॉज आई हैड नथिंग, नो वेयर टू वेंट इट आउट। तो मैंने स्टेज पे बोला था, अभी भी यूट्यूब पे है। हाँ, आई विल डेफिनेटली गो इन, बट डू यू रिमेंबर ऐसा 2-3 कुछ लाइन याद है फॉर पीपल हु आर वाचिंग? नहीं याद तो नहीं, पर टाइटल याद है कि यही था कि वो आंखों से बलात्कार करते हैं। ओके, फर्स्ट हार्ट ब्रेक। First heartbreak was when I couldn't go on with the guy I felt for because of my own limitations. तो ऐसा उसकी कोई गलती नहीं थी। I have never met a guy who has broken my heart. Oh, wow, that's so refreshing to hear. मुझे बहुत अच्छे लड़के मिले हैं जिंदगी में, अच्छे लड़के, दोस्त, अच्छे लड़के who I felt for. तो कोई वैसे तो, but I felt heartbroken that why did I break their heart. तो वो था कि काश मैं ब्रेव होती, काश मुझे पता होता कि मैं क्या फील कर रही हूँ, और काश मैं उसके लिए स्टैंड ले पाती, उसके लिए लड़ लेती। तो हाँ, अमेजिंग। बहुत अच्छा लगा सुनकर कि यार फाइनली किसी लड़की ने कहा कि मुझे अच्छे लड़के मिले हैं। हाँ यार, अच्छे लड़के तो हैं, मेरे तो बहुत होप्स आए। चलो लास्ट 2 करते हैं। फर्स्ट पीरियड आई गॉट इन 8th स्टैंडर्ड, और तभी मैं रोने लग गई थी कि ओ शिट, ये क्या हो गया। हाँ, लाइक मोस्ट गर्ल्स ऑफ कोर्स, राइट। तो पहले तो मुझे लगा डाइपर पहना रहे। वो था, लेकिन बहुत बुरा लगता था, रोना आता था, क्योंकि हमारे में पीरियड्स में लड़कियों को टच करना अलाउड नहीं होता। तो और पहले तो पैड्स भी नॉर्मल नहीं थे हमारे घर पे। वी यूज टू यूज क्लॉथ्स, दोज क्लोथ्स, क्या बोलते हैं, क्लॉथ। हाँ, कपड़ा। हाँ, करेक्ट। कपड़ा। तो रोना आ जाता था कि स्कूल भी जा रहे हैं, आके धोए भी। ओह नो, कब तक किया वो फिर ये? वो 10th तक, 9th तक किया। फिर चुपके चुपके पैड यूज करने लगे, वो भी चुपके चुपके करना पड़ रहा है। सच में? सीरियसली? हाँ, मम्मी ने कभी पैड यूज नहीं किया ना। हाँ, करेक्ट। तो शी थॉट दैट इट्स बैड फॉर अस, क्लॉथ इज हाइजीनिक, तो हमको मना करती थी, और पाप लगेगा क्योंकि पैड धोते नहीं है। तो दिस इज वेरी कन्वर्सेशन, बट नो, बट इट्स नॉट, इट्स you've raised a very important point. हम लोगों में तो बोला जाता है कि हम राक्षसनी का रूप होते हैं जब पीरियड्स होता है तभी। तो इट्स काइंड ऑफ अ स्टिग्मा स्टिल। It is मेरा still. भाई तो अभी भी पैड टच नहीं करता। वो मैंने बोला कि तुम बॉम्ब टच कर लोगे, पैड टच नहीं करोगे, तो तू ले ले, ये क्या है। I hope you do better यार। या हम ट्रेन कर रहे हैं, हो जाएगा, ट्रेन धीरे कर रहे धीरे हो जाएगा। चलो ये फर्स्ट रिबेलियन started only with rebellion. जैसे I was not allowed to have a public account on Instagram और social media anyway, पर मुझे जो बोलना था, जो मैं लिखती थी, मुझे बहुत जगहों पे वो पहुंचाना था। ऐसी चुल रहती है ना हमें कि मैं जो लिख रही हूँ वो मैं, ये जो आग है वो फैलनी चाहिए, ये जो गुस्सा है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो वो मेरे अंदर था। तो my first rebellion started with me making my Instagram profile public. I think that is huge for me because उससे पहले I used to write as anonymous and post everything, all the poetries that I used to post. I never showed my face on my ID. अभी भी वो ID है, आप देखोगे ना पुराने पोस्ट, उसमें मेरा फोटो ही नहीं है, सिर्फ वो कविताएं हैं। फिर मैंने बोला कि चेहरा दिखाना ज़रूरी है, तो फिर ऑन कर दिया, वो पब्लिक कर दिया, और फिर मैं ही अपनी कविताएं बोलने लग गई। वहीं से स्टार्ट हुआ, पर मुझे कभी लगा नहीं था कि मम्मी पापा देखेंगे, क्योंकि वो लोग हैं नहीं इंस्टाग्राम पे। तो वो लोग जब भी जाते थे घर के बाहर, तो मैं रूम लॉक करके एक ऐसी बॉटल लेके नीचे येलो लाइट डाल देती थी, मतलब फ्लैश लाइट डाल देती थी येलो बॉटल के नीचे, तो वो लैंप इफेक्ट आता था।
वाओ और स्टडी टेबल को रखती थी बेड की सपोर्ट से, बेड को ट्राइपॉड बना लेती थी और फोन वहाँ खड़ा रखती थी और फिर मैं शूट करती थी और जैसे मम्मी पापा आ जाते थे सब रैप अप करके जैसे कुछ हुआ ही नहीं यहाँ पे, जैसे पूरा स्टूडियो बना ही नहीं था ये रूम, तो फिर मैं वैसे कर लेती थी। तो आई थिंक वो ही एक बहुत, वहीं से तो शुरू होता है सब। ओह माय गॉड, बहुत सारी बातें हमने यू नो की है एंड फाइनली व्हाट आर योर थॉट्स राइट नाउ, वो बताओ मुझे, व्हाट आर यू थिंकिंग, हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग गुड। ऐसा लग रहा है कि काफी दूर तक आ गए यार। ये सब बातें करके, आज पुरानी चीजें याद करके ऐसा लग रहा है कि शाबाश। come a long way. It's Yes. difficult. All of this was difficult. And I would say that I have grown as a person immensely. जो मुझे बचपन से जानते हैं ना, वो तो मतलब वो समझ ही नहीं पाते क्या हो गया अचानक से, कौन सी स्विच गिर गई या खुल गई, क्या हो गया। This was always you. This is always you. Yeah. You've just come out of the box. Yeah. That's मैं it. अपने क्लोजेट से बाहर आ गई। Closet से बाहर आ चुकी हो. That's amazing. Before you go, you've spoken so much about the good girl conditioning, but because you write, okay, आप शायरी लिखते हो, कविता लिखते हो, ऐसा कुछ अभी दिमाग में आ रहा है? Something to do with girlhood, something to do with womanhood that you would like to leave us with? Oh, I've written one thing. Yes. आग ना हो जिसमें वो नारी नहीं, बिच बनो लड़कियां बिचारी नहीं। ओहो, love it. It's और एक लिखा amazing. है, हाँ. हाँ, कहते हैं लड़की हाथ से निकल जाएगी बर्बाद हो जाएगी, अब लड़की हाथ से निकले ही नहीं तो हाथ में ही रह जाएगी। क्या बात है यार. Woo! You should you do more open mics. Yeah. यार. It's बस amazing. रात को ओपन माइक सुबह कर दूं ना मैं। इतनी लड़कियां आएगी, आपको अंदाजा भी नहीं है। इतनी लड़की लाइक फीमेल राइटर्स हैं जो सिर्फ इस वजह से रुक जाते हैं कि रात को होता है। Yeah, but thank you so much for being on the show. Thank you so much being for the having me. best good girl that you could be. मेरे पास एक बहुत छोटी सी चीज़ है तुम्हारे लिए. अरे वाह, थैंक यू। I want to give you a sunflower. Thank This you is so what I much. do to. I mean, I give a sunflower to every girl who sits on this couch. क्या बात है यार। Class में. Thank you so So much. yeah, I feel like कोई लड़के तो फूल दे नहीं रहे हमें. आपको भी ये। Thank you.